So, hello everyone, welcome to our group, that is the Ask Geology group, a whole new way to understand our Mother Earth. So, today we'll discuss about only the igneous texture of igneous rock. We'll be covering this part from directly from the winter book. Okay, this is actually the winter book. Here you can see this is the winter book. So, in this case we will just see what are the various types of textures present in igneous rocks. All of you know igneous rocks are considered to be the primary rocks, and igneous rocks are formed from the directly crystallization of your magma. And magma, all of you know, magma is the molten rock material. And all of you know what is a rock is a natural aggregate of minerals. Okay, सो कहीं पर भी इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक या फिर सेडिमेंटरी रॉक, कोई भी रॉक पढ़ो, दिस रॉक्स आर नथिंग बट नेचुरल एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स. तो मिनरल्स यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट क्लास जब हम पढ़े थे इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन में, in the classification part also we saw that depending upon various types of factors like depending upon the texture, depending upon the color, depending upon the chemical constituents. Okay, there are so many types of chemical classification. There are so many types of igneous rock classification. And apart from those, okay, the chemical classification of rocks, okay, the chemical classification of rocks, that was considered worldwide. Okay, nowadays the classification based on your mineralogy, based on this chemical composition, that is also till now it is followed. ठीक है. अभी if we are just telling that igneous rock classification are followed through the chemical composition in a rock, chemical composition का मतलब क्या है? What does this chemical composition means? Okay, chemical composition in the sense, if this rock is made up of minerals, and these minerals, okay, these mineral phases, small mineral species constituting the rock, they will define the bulk chemical composition of that rock. That's why igneous rock के लिए भी mineralogy बहुत ही ज़्यादा important है. And based on that mineralogy, you will be defining the name of a particular rock. ठीक है, जैसे कि अभी सिलिका सैचुरेटेड, सिलिका अंडर सैचुरेटेड, ये क्लासिफिकेशन स्कीम हो गया. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द SiO2 परसेंटेज, देन यू विल बी क्लासिफाइंग वन igneous rock टू बी सिलिका सैचुरेटेड, सिलिका ओवर सैचुरेटेड, अंडर सैचुरेटेड. ओके, जैसे क्वार्ज हो गया सिलिका ओवर सैचुरेटेड, नेफेलिन हो गया सिलिका अंडर सैचुरेटेड, फेल्ड्स्पाथोइड जितने भी है दोज आर सिलिका अंडर सैचुरेटेड. इन द QAPF डायग्राम यू आल्सो सो दैट. ओके, ये जो तुम्हारा QAPF डायग्राम है, below this base, okay, this is K feldspar and this is plagioclase. Below this line, this is silica under saturated, and above this, that is silica saturated. All of you know यहाँ पर SiO2 होता है, and this is your feldspathoid or foid, है कि नहीं? So and SiO2 and feldspathoid, they cannot coexist together. ठीक है, तो ये इग्नियस टेक्सचर है. सो बिफोर यहाँ से इग्नियस टेक्सचर जाने से पहले, नाउ दिस न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ रेट, बिकॉज द इग्नियस रॉक्स आर सपोज टू क्रिस्टलाइज फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द मैग्मा. ओके, एंड मैग्मा से वेट, नाउ अभी क्या होता है कि तुम्हारे मैग्मा से एक क्रिस्टल बनेगा. क्रिस्टल मीन्स एक सॉलिड बनेगा. सो दिस सिस्टम वी कैन कंसिडर इट टू बी ए solid liquid system. Okay, solid liquid system. And यहाँ पे when the temperature of the magma chamber that falls, okay, when this temperature decreases, then at a particular point the crystallization temperature of a particular solid that comes. Okay, वो crystallizing point आने के बाद it starts to crystallize. Okay, सो क्रिस्टलाइज करने के बाद देन ग्रोथ होता है. ओके, फर्स्ट तुम्हारा होता है न्यूक्लिएशन. ठीक है, न्यूक्लिएशन, देन तुम्हारा होता है ग्रोथ. बट बिफोर न्यूक्लिएशन वहां पे और एक स्टेज आता है जिसको बोलते हैं हम एम्ब्रोयो. ओके, एंड फॉर द न्यूक्लिएशन टू हैपन वी नीड सुपर सैचुरेशन. ओके, सुपर सैचुरेशन. अगर किसी ने मेरा जो फर्स्ट या फिर सेकंड मिनरलोजी का इंट्रोडक्शन टू मिनरलोजी जो पार्ट था, उसमें अगर नहीं देखे हो, यू हैव टू गो एंड वॉच दैट वीडियो. व्हाट इज एम्ब्रोयो, व्हाट इज न्यूक्लियस, एंड हाउ, ओके, एंड हाउ द सरफेस एनर्जी चेंज, ओके, दैट इज द सरफेस एनर्जी चेंज
and the volume change of that particular solid that plays a great role in forming a nucleus. ठीक है, ऐसा वाला कॉर्प देखे होगे, लाइक ये तुम्हारा सरफेस एनर्जी चेंज है, ये तुम्हारा वॉल्यूम एनर्जी चेंज है. दिस इज द resultant, this is actually basically the radius of your solid. Okay, critical radius, ये जो तुम्हारा पॉइंट होता है, this point, okay, let me just zoom little bit. So यहाँ पे जो तुम्हारा है, this is called, ये जो तुम्हारा है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, this radius is called your RC means this is your critical radius. ये लास्ट वाला वीडियो में देख लेना, फर्स्ट जो स्टार्टिंग में है. तो ये जो क्रिटिकल रेडियस है, बिफोर दिस अटेनमेंट ऑफ दिस क्रिटिकल रेडियस, वट एवर द लाइक दिस इज सॉलिड, एक बन गया, सॉलिड बन गया, सॉलिड बन गया, नाउ दे विल बी कॉल्ड एज योर एम्ब्रोयो. They will not be called as your nucleus. After attaining this critical radius, then they will start to grow. Here the growth that continues, and at this particular critical radius, इसके बाद जो होता है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लिएशन. ठीक है, then after complete nucleation or after successful nucleation, the growth starts. Okay, and this is the concept how the nucleation, formation of embryo, then formation of your nucleus, that is the that process is called nucleation, then finally the growth. Okay, how this happens. And grow करने के बाद different minerals having different chemical affinity, they just come closer, they form one particular mineral phase. ओके, इन थर्मोडाइनमिक्स में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंपोनेंट क्या होता है, फेज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इंडिविजुअल जो तुम्हारा मिनरल फेज बनता है, देन कलेक्शन ऑफ योर वेरियस मिनरल फेजेस एक रॉक में बन जाता है. देन डिपेंडिंग अपॉन द chemical mineralogy or chemical species present here, the chemical species means the minerals. So depending upon the mineralogy, we just define the name of that particular rock. जैसे कि हम बोलते हैं ग्रेनाइट. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रेनाइट बोलते हैं. ग्रेनाइट एक रॉक है, तो ये ग्रेनाइट, इसमें तुम्हारा एक एसेंशियल मिनरल होता है, इसमें क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार होना जरूरी है. If quartz and feldspar are not present, some accessory minerals like biotite, hornblende ये भी तो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार ये दोनों रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ठीक है, एंड उसके बाद हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ योर नॉर्मेटिव मिनरल्स, इसके बारे में भी देखेंगे बाद में. ठीक है, so let's just start the igneous texture. This is directly we will be taking from the winter book. Okay, so इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड इन दिस चैप्टर. तो व्हाट टेक्सचर्स में बी प्रोड्यूस्ड एज magma cools and crystallized to form igneous rock. ओके, नाउ ये जो तुम्हारा बावेंस रिएक्शन सीरीज जो दिया गया है, ओके, नाउ दिस बावेंस रिएक्शन सीरीज बेसिकली टेल्स, ओके, तुम्हारे जीएसआई में एक पेपर, जीएसआई में तुम्हारा इग्नियस में एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर बावेंस रिएक्शन प्रिंसिपल. ओके, बावेंस रिएक्शन प्रिंसिपल, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मे बी 5 मार्क का फॉर द नेक्स्ट 2023 जीएसआई. ओके, सो लेट इट बी, उसके बारे में देखेंगे. सो जब तुम्हारा मैग्मा चैम्बर, इट इज मेंटेन्ड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, व्हेन इट कम्स, देन the sequence of the mineral formation, the sequence of the formation of minerals, that is given by experimentally, that is given by this Barnes reaction series. Okay, जहाँ पे तुम olivine, like starting from the very simple phases, okay, starting from the various simple phases to very complicated phases. Okay, यहाँ पे तुम्हारा क्वार्ज आता है, which is tectosilicate. You can see if you consider the chemistry, then it is very highly polymerized. ओके, तो ये सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड फेज जो आता है, ये होता है तुम्हारा बायोन्स रिएक्शन सीरीज. now the crystallization concept, the condition of your crystallization, whether it is equilibrium crystallization or fractional crystallization, or if it is dynamic crystallization. Okay, so depending upon these various types of minerals will be formed. Okay, now this, if two minerals are forming, okay, if two minerals are forming,
ऑल ऑफ यू नो दिस ओलिविन जो है, दिस इज Mg2 MgFeSiO4, MgFe ये 2SiO4। तो Mg कैसे आएंगे, Fe कैसे आएंगे, या फिर यहाँ पर और एक रॉक में लाइक क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार जैसे कि है, तो एक साथ अगर एक सिस्टम में ग्रो करेंगे, देन हाउ दे विल ग्रो, how they will grow. That means the grain to grain relationship of quartz and feldspar inside that rock, वो कैसे होगा, मतलब how this cooling will start, which mineral will crystallize fast, which will crystallize last, and is there any kind of reactions that is happening in between. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली फॉर्म एंड द सेकेंडली फॉर्म, पहले जो फॉर्म हुआ है और बाद में जो फॉर्म हो रहा है, उनके बीच में कोई रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो है, ये जो तुम्हारा ग्रेन टू ग्रेन जो रिलेशनशिप है, उसी को बोलते हैं टेक्सचर। ठीक है, तो ये जो टेक्सचर, व्हाट टाइप ऑफ टेक्सचर बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कूलिंग और टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, देन उसका क्या क्या वेरिएबल्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लूइड कंटेंट, ये सब क्या है, ये जो इग्नियस टेक्सचर को अफेक्ट करेंगे। एंड हाउ डू दे डू सो, जो अफेक्ट करेंगे कैसे अफेक्ट करेंगे, प्रोसेस थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एंड व्हाट रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्सचर में रिजल्ट एट हाई टेम्परेचर इग्नियस मिनरल्स वंस फॉर्म्ड कूल फर्दर टुवर्ड नियर सरफेस कंडीशन। एंड दूसरा चीज ये है कि नाउ यहाँ पर देखेंगे, इफ यू जस्ट कंसिडर द बाउंस रिएक्शन सीरीज, ये जो ओलिविन का क्रिस्टलाइजिंग टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, अभी उसका जो टेम्परेचर है वेरी हाई टेम्परेचर है। नाउ इफ वी आर फाइंडिंग दिस ओलिविन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ में उसका टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन हो रहा है। नाउ अभी इसका क्रिस्टलाइजेशन हाई टेम्परेचर में हो गया है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में हुआ है। नाउ इट इज कमिंग टू द सरफेस एंड इट इज प्रेजेंट at a condition where the temperature pressure condition is far low than in condition when it crystallized। तो ये वाला टेक्सचर में टेक्सचुरल चेंजेस क्या होगा, मे बी होगा या फिर नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा। ठीक है, वो भी देखेंगे। एंड हाउ कैन वी वर्क बैकवर्ड फ्रॉम द नॉलेज वी हैव एंड यूज द टेक्सचर वी सी टू इंटरप्रेट द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ रॉक एग्जिबिटिंग देम। तो ये जो ग्रेन का जो इंटर रिलेशनशिप है, वही वाला टेक्सचर। एंड फ्रॉम दिस टेक्सचर हाउ वी कैन जस्ट गो बैकवर्ड कंटिन्यूएशन करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उस टाइम में तुम्हारा कैसे कैसे हुआ था, जो कि तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन सीक्वेंस, क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस था उस टाइम में क्या क्या हुआ था। ठीक है, अभी जैसे कि फ्लूइड इंक्लूजन हम यूज करते हैं, फ्लूइड इंक्लूजन को यूज करके हम क्या निकालते हैं, ambient condition when the crystallization started or when this crystallization happened, what was the ambient temperature pressure condition during that time, ये हम निकालते हैं। अभी तो हमारे पास जो है सो है, लेकिन उस टाइम में, जिस टाइम में ये क्रिस्टलाइजेशन हुआ था, उस टाइम में कैसे, व्हाट वाज द कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, और इफ सम फ्लूइड कंडीशन कुछ है तो कैसे कंडीशन, ये सब था। ये सब यहाँ पर हम देखने को मिलेगा, देखेंगे हम। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना है। ये पेट्रोग्राफी क्या है, पेट्रोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ, तुम्हारा जो भी है डेफिनेशन जो दिया गया है, पेट्रोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ पेट्रोलॉजी दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। ये जो चीज है ना, जो डेफिनेशन होता है, ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जैसे कि कोई तुम्हें अगर पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मतलब लोजी, ओके, लोजी एंड ग्राफी। ठीक है, ये सब कुछ इंटरव्यू रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन हो जाता है। अगर तुम्हें कोई बोलेगा पेट्रोग्राफी एंड पेट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ना यू हैव टू डिफाइन दैट पेट्रोग्राफी में ये होता है, पेट्रोलॉजी में ये होता है। ठीक है, लॉजी मीन्स दैट कम्स फ्रॉम द लोगोस, दैट इज द साइंटिफिक स्टडी। ओके, पेट्रोग्राफी मीन्स इट इज द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ओके, सो ये सब चीज। एंड इग्नियस रॉक का एक टेक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग टेक्सचर। ओके, इंटरलॉकिंग टेक्सचर इट इज द कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि डायरेक्टली क्रिस्टलाइज से अगर माग्मा से डायरेक्ट तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, सो वहां पे जो टेक्सचर होगा बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, मतलब इंटरलॉकिंग होगा, इन बिटवीन कुछ होगा नहीं उसके बीच में। तो इंटरलॉकिंग टेक्सचर इट इज द कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर ऑफ योर इग्नियस रॉक्स। ठीक है,
एंड प्राइमरी टेक्सचर सेकेंडरी टेक्सचर इसके बेसिस में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। प्राइमरी टेक्सचर एंड सेकेंडरी टेक्सचर, तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, देखा हूं क्वेश्चन, लाइक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी टेक्सचर, इग्नियस प्राइमरी टेक्सचर, ठीक है। अभी यहाँ पर तुम्हारा अगर दे दिया कि तुम्हारा क्रॉसियस ट्यूनिंग ये एक वन टाइप ऑफ टेक्सचर है व्हिच इज नॉट प्राइमरी, माइक्रोक्लाइन में दिखेगा बट दैट इज नॉट प्राइमरी, ठीक है, दैट इज नॉट प्राइमरी। अभी जैसे कि हम एक सॉल्यूशन टेक्सचर हम पढ़े थे वहां पे, है कि नहीं, एक सॉल्यूशन जो तुम्हारा प्लाजियोक्लेज सीरीज में एक सॉल्यूशन टेक्सचर जो दिखाता है, तो उसमें क्या है कि तुम देखना माइक्रोक्लाइन कहाँ पर हो रहा है, एंड नाउ व्हेन इट इज कमिंग ऑन टू द सरफेस देन उसका जो फर्दर ओके क्रिस्टलाइजेशन एक कंडीशन में हो रहा है, देन नाउ अभी वो जिस कंडीशन में है लाइक द ऑन द सरफेस, तो उसमें जो पोस्ट क्रिस्टलाइजेशन डिफॉर्मेशन, पोस्ट क्रिस्टलाइजेशन चेंजेस जो हुआ है, this texture what we are seeing in maybe microcline, that is cross-hatch tuning, microcline में जो cross-hatch tuning होता है that is the post magmatic रीअरेंजमेंट में भी, ओके। तो ये एक तुम्हारा जो ये वाला ट्विनिंग है दैट इज वन एग्जांपल ऑफ योर सेकेंडरी टेक्सचर। तो प्राइमरी टेक्सचर एंड सेकेंडरी टेक्सचर में डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद उसको बताने के बाद नेक्स्ट जाऊंगा, ठीक है। प्राइमरी टेक्सचर देखो ये अकर्स ड्यूरिंग इग्नियस क्रिस्टलाइजेशन एंड इट रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरैक्शंस बिटवीन मिनरल्स एंड मेल्ट, ठीक है। प्राइमरी टेक्सचर मतलब ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्सचर बनता है दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी टेक्सचर। तो प्राइमरी टेक्सचर में कौन कौन सा आएंगे वो देखेंगे यहाँ पर, प्राइमरी टेक्सचर में देखेंगे। एंड सेकेंडरी टेक्सचर में क्या होता है, दीज आर पोस्ट क्रिस्टलाइजेशन टेक्सचर, मतलब एक तुम्हारा हो जाता है टेक्सचर डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट जो तुम्हारा टेक्सचर डेवलप होता है, दीज आर नथिंग बट दीज आर अल्टरेशंस दैट टेक प्लेस आफ्टर द रॉक इज कंप्लीटली सॉलिड। जैसे कि हम एक सॉल्यूशन टेक्सचर देखते हैं, एक सॉल्यूशन टेक्सचर। नाउ ये जो एक सॉल्यूशन टेक्सचर होता है, ये तुम देखो ऐसे ऐसे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, जो एक सॉल्यूशन टेक्सचर हम जो देखे थे, तो एक सॉल्यूशन टेक्सचर कैसा था, यहाँ पर ऐसे कुछ आ रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसे आ रहा है, देन ये तुम्हारा सॉल्वस है, ठीक है। नाउ यहाँ पे नाउ एट दिस पॉइंट योर क्रिस्टलाइजेशन इज कंप्लीटिंग, खत्म हो गया क्रिस्टलाइजेशन, ये तुम्हारा सॉलिड बन गया पूरा। नाउ यहाँ पे जब व्हेन इट इज फर्दर कमिंग डाउन, that means the temperature is further cooling, or it is further cooling, or the temperature is falling, now this is actually a solid, isn't it? Now when the solid is just touching this solvus, it is just splitting into two, ठीक है। यहां पर तुम्हारा अल्बाइट है, यहाँ पे तुम्हारा ऑर्थोक्लेज है, ये तुम्हारा स्प्लिट कर रहा है। नाउ दिस एक्सोल्यूशन टेक्सचर, एक सॉल्यूशन टेक्सचर, दिस टेक्सचर्स आर नथिंग बट द सॉलिड फेज डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन हो रहा है या फिर जो पार्टीशनिंग हो रहा है दैट इज हैपनिंग इन ए सॉलिड स्टेट, ठीक है। लेकिन इसका क्रिस्टलाइजेशन कहाँ, यहाँ पे तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो गया था। नाउ क्रिस्टलाइजेशन खत्म होने के बाद भी नाउ दीज आर सॉलिड स्टेट टेक्सचर्स, और सॉलिड स्टेट में वो डिफरेंशिएट हो रहा है। जितना तुम्हारा अल्बाइट है, अल्बाइट इस साइड कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ऑर्थोक्लेज तुम्हारा इस साइड कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट यहाँ पे जो तुम्हारा टेक्सचर दिखेगा, पोर्थाइट और एंटी पोर्थाइट टेक्सचर जो दिखेगा, नाउ दीज आर, और द एक्सोल्यूशन टेक्सचर्स आर, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ योर सेकेंडरी टेक्सचर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दीज आर इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आते हैं प्राइमरी टेक्सचर में। प्राइमरी टेक्सचर में क्या होता है, दिस इज द क्रिस्टल मेल्ट इंटरेक्शन, क्रिस्टल मेल्ट इंटरेक्शन, और डायरेक्टली क्रिस्टलाइजिंग फ्रॉम द लिक्विड। अगर क्रिस्टल मेल्ट इंटरेक्शन बोल रहे हैं, एंड ऑल ऑफ यू नो, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा इग्नियस रॉक्स होता है डायरेक्टली क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द मेल्ट, तो इसको हम क्रिस्टल मेल्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, जहां से कि तुम्हारा फ्रॉम मेल्ट से क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। देखो, द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स आइदर फ्रॉम मेल्ट और इन अ सॉलिड मीडियम और मेटामॉर्फिक मिनरल ग्रोथ इन्वॉल्व्स थ्री प्रिंसिपल प्रोसेसेस। फर्स्ट, द इनिशियल न्यूक्लिएशन,
second subsequent crystal growth, and third the diffusion of chemical species. ठीक है, द डिफ्यूजन ऑफ केमिकल स्पेसिस ये भी होता है, देखेंगे। और डिफ्यूजन के लिए तुम्हारा टेम्परेचर कैसे मतलब दैट दैट टेम्परेचर प्लेज ए ग्रेट रोल, और दैट बिकम्स द डिटरमिनिंग फैक्टर, वो भी देखेंगे। सो न्यूक्लिएशन क्या होता है? न्यूक्लिएशन इज ए क्रिटिकल इनिशियल स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, जैसे कि एम्ब्रोयो के बाद तुम्हारा क्या बनता है? न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, यहां पर जो तुम्हारा इंटरमीडिएट जो ये जो है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिटिकल रेडियस, आरसी। क्रिटिकल रेडियस, क्रिटिकल रेडियस से नीचे होगा दैट विल बी एम्ब्रोयो, एंड क्रिटिकल रेडियस से ऊपर होगा दैट इज द रेडियस ऑफ दैट सॉलिड। if it is greater than the critical radius, then we will call it as a nucleus. ओके, न्यूक्लियस ये जो प्रोसेस है उसको न्यूक्लिएशन बोलते हैं, एंड दिस इज द इनिशियल स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्टल। ओके, वेरी टाइनी इनिशियल क्रिस्टल्स हैव ए हाई रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। ये जो क्रिटिकल रेडियस है दैट ऑल्सो डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एनर्जी चेंज एंड द वॉल्यूम एनर्जी चेंज। Okay, this is the resultant of these two energies associated with that. Okay, वो ग्राफ है, क्लास जाके मतलब क्लास खत्म होने के बाद यू जस्ट गो टू यूट्यूब में देख लो, वो वाला मे बी फर्स्ट या फिर सेकंड वीडियो में होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये सब पढ़ लेना है, न्यूक्लिएशन क्या होता है, ग्रोथ रेट क्या होता है, इसमें खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं, बिफोर क्रिस्टलाइजेशन कैन टेक प्लेस ए क्रिटिकली साइज्ड एम्ब्रियोनिक क्लस्टर और द क्रिस्टल न्यूक्लियस, यही वाला बता रहे हैं, न्यूक्लियस पहले फॉर्म होगा with a sufficient internal volume of fully bonded ions to overcome the surface related instability। क्योंकि जब तुम्हारा एक क्रिस्टल बहुत छोटा होता है, देन इसका सरफेस एनर्जी टू वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा बनता, मतलब सरफेस एनर्जी, वेरी हाई सरफेस एनर्जी रहता है। ओके, एंड ऑल ऑफ यू नो, अगर हाई एनर्जी स्टेट में है और हाई एनर्जी उसका पास है, देन दैट इज नॉट द स्टेबल केस। ठीक है, स्टेबल केस किसको बोलते हैं? जहां पर तुम्हारा डेल जी मिनिमम हो जाता है। ठीक है, जहां पर तुम्हारा डेल जी मिनिमम हो जाता है। सो दैट्स वाई, ठीक है, और न्यूक्लिएशन होने के लिए एक छोटा सा पॉइंट ही चाहिए, दैट इज द न्यूक्लिएशन पॉइंट। तो ये होने के लिए, ठीक है, ये होने के लिए वी नीड अंडर कूलिंग। सम डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर न्यूक्लियस। ठीक है, ये देखो, दिस टिपिकली रिक्वायर्स सम डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अंडर कूलिंग, cooling of a melt below the true crystallization temperature of a mineral. That means if one mineral is supposed to crystallize at a temperature of let 900 degree centigrade, ठीक है, तो यहां पे 900 डिग्री सेंटीग्रेड में इफ द सरफेस एनर्जी टू द वॉल्यूम एनर्जी एसोसिएटेड फ्री एनर्जी ऑफ द वॉल्यूम, अगर ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, देन इट कैन नॉट फॉर्म वन न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लिएशन के लिए ये हो जाता है वेरी क्रिटिकल स्टेप। तो कब बनता है? इफ दिस सिस्टम if this system experience some degree of undercooling, that means the temperature falls below this 900 degree centigrade, maybe some 890 degree centigrade. So this is the critical step, or this is the undercooling, little degree of undercooling which is needed for the nucleation। ठीक है, ठीक है, ये है तुम्हारा मेन चीज। फॉर द न्यूक्लिएशन टू स्टार्ट वी नीड सम डिग्री ऑफ अंडरकूलिंग। ओके, ओके, और सुपर सैचुरेशन, अगर सुपर सैचुरेटेड हो गया तब भी हो सकता है, अंडर कूलिंग भी हो सकता है। बट दिस सुपर सैचुरेशन केस ये कहाँ होता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। एंड मैक्सिमम हम देखेंगे वो सब अंडर कूलिंग में होता है। सुपर सैचुरेशन का डिफरेंट केस हो जाता है। ठीक है, इसको और जियोलॉजी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देन होमोजीनियस न्यूक्लिएशन क्या है, हेटेरोजीनियस न्यूक्लिएशन क्या है। अगर इफ आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट जब तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन बनेगा तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म जिसका होगा, देन दे विल क्रिस्टलाइज फास्ट। तो कौन सा पहले, कौन सा? ऑक्साइड, ऑक्साइड ये वाला। जैसे कि अब
ओलिविन बताएंगे या फिर नेसोसिलिकेट बोलेंगे। इन नेसोसिलिकेट 2000 सिलिकॉन ऑक्सीजन होना चाहिए, SiO4 टेट्राहेड्रा आएंगे, तो सिलिकॉन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, टेट्राहेड्रल फॉर्म बनाएंगे। उससे अच्छा है कि साला ऑक्साइड ही बना लेंगे, MgO पेरिक्लेज, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बना के ये तुम्हारा ऑक्साइड्स बना लेंगे। दीज आर वेरी वेरी सिंपल। ओके, ये लिखा भी हुआ है, क्रिस्टल्स विद सिंपल स्ट्रक्चर टेंड टू न्यूक्लिएट more easily than those with complex structures. That's why oxides generally nucleate more easily than does olivine. Okay, so यहाँ पे हमारा और एक conclusion क्या है? When this Bowens reaction series we are talking about, we are just neglecting the oxides, hydroxide, carbonates, etc. and etc. And all of you can see in this Bowens reaction series, the minerals that he considers is only the silicates, nothing else. ठीक है, ओलिविन होता है, उसके बाद फॉलोड बाय पायरोक्सिन, देन प्लाजियोक्लेस, अल्काली फेल्डस्पार विथ प्रोग्रेसिवली मोर कॉम्प्लेक्स SiO पॉलीमराइजेशन। ठीक है, न्यूक्लिएशन के बाद होता है तुम्हारा क्या, सॉरी, न्यूक्लिएशन के बाद होता है तुम्हारा क्रिस्टल ग्रोथ। ग्रोथ बनेगा धीरे 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 धीरे, अभी वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। जैसे कि अभी हमारा यूट्यूब चैनल छोटा छोटा है, अभी धीरे 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 न्यूक्लिएशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ वीडियो चाहिए था, बहुत सारा वीडियो हो गया, अभी हमारा क्रिटिकल रेडियस आ गया, अभी हम धीरे 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 ग्रो करेंगे। नाउ द रेट ऑफ ग्रोथ विल बी वेरी लिमिटेड। ठीक है, द रेट ऑफ ग्रोथ विल बी वेरी लिमिटेड। अभी 1 साल होने के बाद कुछ रिजल्ट दिखा देंगे, उसके बाद द रेट ऑफ ग्रोथ विल इंक्रीजिंग। दैट एक्चुअली हैपेंस इन केस ऑफ योर क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ में भी यही होता है। इफ यू जस्ट वेरी माइन्यूटली सी द रेट ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ starting from the nucleation or the embryo stage to the nucleation to the growth rate, then you will see that in the starting phase the rate of crystal growth is slow and it increases with time. ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि पूरा इंक्रीज करता ही जाएगा, लीनियर रिलेशनशिप में नहीं रहेगा, उसका भी बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा लाइक डिटरमिनिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, then this crystal growth involves the addition of ion onto existing crystal or crystal nuclei in a simple structure with high symmetry phase with a high density of lattice point tend to form more prominent faces. अभी इसका क्या मतलब है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नाउ कभी देखे हैं जो द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट होमोजीनियस। ओके, द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट होमोजीनियस और इट इज नॉट इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस। एक डायग्राम हम देखेंगे जिसमें जिसमें वो लिखा हुआ है कि नाउ इफ, ओके लेट मी जस्ट जूम समहाउ, क्योंकि इसी में ही पढ़ाना है तो इसी में ही करना है। तो अभी एक कंसिडर करेंगे, इफ दिस इज द न्यूक्लिएशन, ए न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद ग्रो कर रहा है, नाउ इट इज ग्रोइंग इन दिस टाइप ऑफ फॉर्म। ओके, इसमें क्या होगा कि द रेट ऑफ ग्रोथ इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, इन तीनों डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होगा। एंड नाउ व्हाट एक्चुअली डिटरमाइंस कि इसमें ज्यादा होगा या फिर इसमें कम होगा या फिर इसमें बहुत ही ज्यादा होगा, इसमें क्या डिटरमिन करता है? It basically determines how your lattice points or how your unit cell is getting transcribed or the number of ions available for you. कौन सा डायरेक्शन में ये जो तुम्हारे आयन्स हैं बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जहां पर बहुत ही ज्यादा डेंसिटी होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, जहां पर कम होगा देन वहां पे धीरे धीरे होगा। यही वाला चीज यहां पर भी वो बताया है। ओके, इन ए सिंपल स्ट्रक्चर you can see in a simple structure with high सिमेट्री बहुत ज्यादा होगा, इन द सेंस वहां पे बहुत ही ज्यादा अरेंज्ड और ऑर्डरली फॉर्म में वहां पर तुम्हारा जो आयंस प्रेजेंट होंगे विथ ए हाई डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट। व्हाट डज दिस मीन, हाई डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट? दैट मीन्स कि वहां पे बहुत सारे ऐसे तुम्हारे लैटिस पॉइंट्स होंगे। डेंसिटी ऑल ऑफ यू नो डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी अभी मैं बोलूंगा ये एक जगह है, ठीक है, और ये एक जगह है, मे भी क्रिस्टल के अंदर ही तुम सोच लो ना, यहाँ पर एक पॉइंट है लैटिस पॉइंट, यहाँ पर ऐसे लैटिस पॉइंट है और यहाँ पे की लैटिस पॉइंट ऐसे ऐसे हैं। सो व्हिच
which is more densed? Obviously this is more dense because इन द सेम पर्टिकुलर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम लेट सेम मान लो, यहाँ पे नंबर ऑफ तुम्हारा लैटिस पॉइंट्स इज लेस एंड यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स आर मोर, दैट्स व्हाई दिस इज हाईली डेंस्ड। अभी यहाँ पर बहुत ही हाईली डेंस्ड है, इसका मतलब जो इसको चाहिए ग्रो करने के लिए, यही तो तुम्हारा एक एक पॉइंट चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। नाउ ही कैन अवेल सो मेनी ऑफ दिस साइट्स, तो इसमें उसका ग्रोथ ज्यादा होगा। अभी ये चाह रहा है कि भाई मुझे दो यार बहुत सारे पॉइंट्स आओ, मैं जैसे बोल रहा हूँ अरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए यार, तुम साला ट्रैफिक ही जनरेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पे अभी ग्रोथ इस डायरेक्शन में कम होगा। और अगर हमारे कोचिंग सेंटर में जितने भी बच्चे हैं सब लोग क्या करेंगे, चलो ये इस यहाँ पे शेयर कर देते हैं, यहाँ पे शेयर कर देते हैं, यहाँ पे शेयर कर देते हैं तो हर जगह अगर शेयर कर देंगे देन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे एंड मे बी हमारा ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेजी से होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल ग्रोथ एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ योर आयंस। ओके, जहां पर तुम्हारा अवेलेबिलिटी हाईली डेंस्ड अवेलेबिलिटी होगा देन वहां पे तुम्हारा ग्रोथ बहुत तेजी से होगा, ठीक है। हाँ, और ये जो अवेलेबिलिटी होता है, ये अवेलेबिलिटी दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इन द सेंस, अभी जैसे कि आई एम योर मेंटर, मैं अभी तुमको मतलब आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ यू डिपेंडिंग अपॉन योर स्टडीज के बेसिस में आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू। अभी तुम अगर मेरा बात मानोगे तभी हमारे बीच में बॉन्डिंग अच्छा रहेगा और द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमारे बीच में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, सो दैट हम लंबा चेन बना पाएंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में हम बन पाएंगे। इफ मैं बोलूंगा अरे तुम ये तुम्हें करना है, तुम बोलोगे नहीं हम नहीं करेंगे, हम बोलेंगे अबे तुम इसको तुम्हें करना होगा, तुम बोलोगे अबे तुम्हें तो कुछ नहीं पता है, तुम तो अभी भी कोचिंग पढ़ा रहे हो, जॉब भी तुम्हारा नहीं है, तो हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द क्रिस्टल, तुम्हारा जो ग्रोथ है दैट ऑल्सो अफेक्ट्स दैट वन, ठीक है, उसको भी अफेक्ट करता है। और ये जो डिफेक्ट फिफेक्ट क्या है, तुम्हारा डिसलोकेशन क्या है, डिसलोकेशन, ग्रोइंग फेस, इम्प्यूरिटीज कैसे आ जाते हैं, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट क्या है, लाइन डिफेक्ट क्या है, और तुम्हारा प्लेन डिफेक्ट क्या है, ये सब भी कवर अप किया हुआ है मिनरल्स क्लास में, तो देख लेना, ठीक है। और इनमें ये देखो, फॉर ग्रोथ टू प्रोसीड न्यू मिनरल्स मस्ट डिफ्यूज थ्रू द मेल्ट। यहाँ पर देखो फॉर ग्रोथ, थोड़ा जूम कर लेते हैं, फॉर ग्रोथ टू प्रोसीड, ओके, यहाँ पे देखो फॉर ग्रोथ टू प्रोसीड न्यू मटेरियल मस्ट डिफ्यूज थ्रू द मेल्ट, डिफ्यूज थ्रू द मेल्ट, दैट इंप्लाइज, ये अगर तुम्हारा एक मेल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑल आर इन लिक्विड, अभी लिक्विड में हर एक चीज अवेलेबल है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर जो हम फेज रूल में यूज करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिक्विड्स आर इमिसिबल, सॉरी लिक्विड्स आर मिसिबल, ठीक है। अभी लिक्विड में कौन सा फेज है, कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, जब व्हेन दे आर फुल्ली इन लिक्विड फेज देन यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम, बट okay, you can distinguish them when they are in a solid state, okay, solid में they are immiscible, ठीक है, मतलब you can differentiate, बट इन केस ऑफ लिक्विड दैट इज मिसिबल। जब हम फेज रूल पढ़ेंगे वहां पर भी देखेंगे, व्हेन इफ इट इज यूनिनरी बाइनरी जो भी तुम सिस्टम ले लो, व्हेन इट इज प्रेजेंट अबव द लिक्विडस इट इज फुल्ली लिक्विड, ठीक है। इफ आई एम कंसिडरिंग द डायोक्साइड एंड अनोर्थाइड सिस्टम, वहां पे एक डायोक्साइड एक फेज है, अनोर्थाइड एक फेज है, okay, when they are like the crystallization is ending at this eutectic point, now at this eutectic point they are forming one solid, एक सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम फेज लेते हैं देन फेज यहाँ पे हमारे लिए 2 हो जाता है, बट इसी सेम तुम्हारा सिस्टम में इफ यू आर कंसिडरिंग वन पॉइंट विच इज प्रेजेंट अबव द लिक्विडस बट विद इन दिस डायग्राम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेज हम सिर्फ एक ही लेते हैं,
दिस इज एक्चुअली व्हाई जब तुम्हारा लिक्विड स्टेट में होता है देन यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। हाँ, डाइऑक्साइड का जो है तुम्हारा Mg है, Fe है, Ca है, Mg है, अनोर्थाइड में तुम्हारा Ca है, जो भी है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है। नाउ यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश दोज पर्टिकुलर एलिमेंट्स और आयंस इन लिक्विड स्टेट। तो ये बोलते हैं लिक्विड जब होता है दैट इज फुल्ली मिसिबल, इसमें हमेशा फेज वन लेते हो। बट व्हेन इट इज सॉलिड, तो यहाँ पे क्या हो गया, यू कैन डिफरेंशिएट द डाइऑक्साइड एंड अनोथाइड इन द सिस्टम इन दैट पर्टिकुलर सॉलिड दैट crystallized from in this binary diagram। ठीक है, you are able to distinguish the dioxide and anorthite, and that is actually the definition of phase। Phase, it should be distinct, it has a distinct physical boundary, and it should be chemically differentiated, it has a definite chemical composition and physical boundary along which we'll be able to differentiate those two phases, then that is the definition of a phase। But in case of liquid, that is fully liquid, you cannot distinguish, or you cannot able to just establish a boundary condition there to differentiate dioxide and anorthite. That's why liquids are considered to be miscible and solids are immiscible। You will be able to find two different like distinct phases। okay, तो ये जो, हाँ ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे जो डिफ्यूज क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अभी लेट 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 अभी क्या होगा कि ओलिविन फॉर्म होगा। ओलिविन फॉर्म होने के लिए, जैसे कि अभी देखो ओलिविन पहले फॉर्म होगा तो ओलिविन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो बेसिकली ओलिविन को फॉर्म करेंगे, दे आर प्रेजेंट इन द ये एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। नाउ यहाँ पे एक न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो गया। नाउ ये जो चीज है, व्हाट दिस विल डू, अभी इसके सराउंडिंग्स में, ठीक है, इसके सराउंडिंग्स में जो भी इसके तरह दिख रहे हैं, मे बी लेट इट टू बी Mg, ये Mg है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो Mg है इसको खींचेगा, यहाँ दूर में जो है इसको खींचेगा। नाउ इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट, इसका आयन को अट्रैक्ट करेगा। नाउ ये जो तुम्हारा आयंस है, दे हैव टू डिफ्यूज थ्रू द मेल्ट, बिकॉज सारा का सारा मेल्ट ही है, तो यहां से यहां तक जब जाएगा इट हैज टू डिफ्यूज। ये जो थोड़ा जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एंड ये होता है, दिस इज कॉल्ड योर डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूज करके जाके यहाँ उसको मिलना चाहिए, मिलेगा तो वो अपने क्लान में उसको ले लेगा, धीरे 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 ये ग्रो करेगा। Okay, so for the growth to proceed, new material must diffuse through the melt. Through the melt means inside the melt, these constituents are present, and these constituents are supposed to go and attach with the nucleus. Okay, and this process is called a diffusion. And depending upon this diffusion, वहां पे हम dendritic texture भी देखेंगे। ठीक है, ओह लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन ये सब थोड़ा जो जो भी लिखा हुआ है पढ़ लेना, ठीक है। देन रेट ऑफ, अभी यहाँ तक कुछ डाउट है, किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो। इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू गाइस कैन आस्क। ओके, यू आर फ्री टू आस्क, नो प्रॉब्लम। किसी का डाउट है? वे बोलो, नहीं है? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रेट ऑफ न्यूक्लिएशन ग्रोथ एंड डिफ्यूजन, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट इसमें तुम्हारा टेक्सचर कैसे बनेगा। कूलिंग रेट, एक तुम्हारा कूलिंग रेट है, ठीक है, ये तुम्हारा रेट ऑफ न्यूक्लिएशन कैसे न्यूक्लिएट होगा, ग्रो कैसे करेगा, एंड डिफ्यूजन, सारा का सारा चीज हम बता भी दिए हैं। ये कूलिंग रेट क्या है देख लेना है, ठीक है। द रेट ऑफ बोथ न्यूक्लिएशन एंड क्रिस्टल ग्रोथ आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ अंडर कूलिंग ऑफ द मैग्मा। ओके, मैग्मा मैग्मा जो अंडर कूलिंग है, द रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अंडर कूलिंग इज नेसेसरी फॉर न्यूक्लिएशन टू हैपन। न्यूक्लिएशन होने के बाद धीरे 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 विद द decrease of your temperature crystal growth starts। Okay, and for the growth of crystal new materials should be added to the nucleus, and this addition, ये जो add होता है, then it will have to, the particular constituents, they have to just diffuse through the melt and come and add to the nucleus, and that's why the crystal growth happens। Okay,
Okay, the maximum nucleation rate because it is easier to add an atom, high kinetic energy, existing crystal lattice and पढ़ लेना है. We can understand the rate of cooling so profoundly affects. यहाँ पर एक तुम्हारा एक न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ रेट दिया गया है. ओके, नाउ यहाँ पर देख सकते हो इफ टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, ये तुम्हारा रेट ऑफ न्यूक्लिएशन है. जहां पर तुम्हारा बहुत, ये देखो पॉइंट, ये एक पॉइंट लेते हैं, सेम में यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं. नाउ यहाँ पर देखो जहां पर तुम्हारा रेट ऑफ न्यूक्लिएशन बहुत ज्यादा है, इफ द न्यूक्लिएशन साइट्स आर मोर देन कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रोथ बहुत ही ज्यादा कम होगा. ठीक है, दिस इज बेसिकली द न्यूक्लिएशन ग्रोथ रेट कर्व. एंड ये वाला कर्व भी हम यहाँ पे जो क्लास है मिनरल का, मिनरल क्लास में, उसमें बहुत अच्छे से क्या डिस्क्राइब किए हैं, वहां पे देख लेना है. सिंपल एक चीज है, व्हेन द न्यूक्लिएशन विल बी हाई डिपेंडिंग अपॉन, अभी मैं वोल्केनिज्म का एग्जांपल ले लेता हूँ. इफ वोल्केनिक रॉक्स आर देयर, तो इसमें क्या होता है कि दे डू नॉट गेट सफिशिएंट टाइम फॉर ग्रोथ और इवन फॉर न्यूक्लिएशन. न्यूक्लिएशन वेरी हाई अंडर कूलिंग, इसको क्या बोलते हैं, वेरी हाई अंडर कूलिंग. अंडर कूलिंग हो जाता है, देन क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लिएशन साइट्स बन जाते हैं बट दे डू नॉट गेट टाइम फॉर देयर ग्रोथ. तो यहाँ पर जो रॉक्स बनते हैं, दैट इज द वोल्केनिक रॉक्स, दे आर बेसिकली फाइन ग्रेन्ड. और जो प्लूटोनिक रॉक होते हैं, आफ्टर न्यूक्लिएशन यहाँ पर बहुत कम न्यूक्लिएशन साइट बनता है बट द रेट ऑफ ग्रोथ इज मोर बिकॉज दे गेट सफिशिएंट टाइम टू ग्रो. ओके, तो ये जो होता है ये तुम्हारा कोर्स ग्रेन होता है. ठीक है, बेसिकली यही चीज है. एंड अनदर थिंग, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक लिखा हुआ है, द टू स्टेज. यहाँ पर देखो, द टू स्टेज कूलिंग कैन क्रिएट ए बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन साइज. ओके, two stages of cooling can create a bimodal distribution of grain size, and slow cooling followed by a rapid cooling is the only possible sequence and might occur when crystallization began in magma chamber followed by the opening of a conduct. just ठीक है. तो ये जो तुम्हारा जो लिखा हुआ है कि that two stages of cooling, two stages of cooling that creates a bimodal distribution of grain size. Bimodal means two. Okay, bimodal distribution of grain size, and this is your porphyritic texture. Porphyritic texture is basically one very classic example of your two stage cooling. porphyritic में देखोगे एक बड़ा बड़ा ग्रेन और छोटा छोटा ग्रेन. ठीक है, पोर्फिरिटिक में एक बड़ा ग्रेन होगा, देन सराउंडिंग में छोटा 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 ग्रेन होगा. नाउ दिस पोर्फिरिटिक टेक्सचर इज बड़ा ग्रेन छोटा ग्रेन. नाउ ये बड़ा ग्रेन छोटा ग्रेन का साइमल्टेनियस एसोसिएशन क्या दिखाता है, यहाँ पर देखो, टू स्टेज ऑफ कूलिंग कैन क्रिएट ए बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन साइज. अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा ग्रेन भी हमारे पास है एंड छोटा छोटा ग्रेन भी हमारे पास है. सो दिस इज कॉल्ड बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन साइज, एंड दिस बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन साइज इज द रिजल्ट ऑफ our two stages of cooling, and that's why porphyritic texture is considered to be the one classic example of a two-stage cooling or bimodal distribution of its grain size. ठीक है, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन दैट. ये देखो पोर्फिरिटिक टेक्सचर यहाँ पर दिखा हुआ है. व्हेन देयर इज ए, सॉरी, देख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो देखो यहाँ पर क्लियर हो. व्हेन देयर इज ए डिस्टिंक्टली बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रेन साइज with one size considerably larger than the other, the texture is called porphyritic texture. Okay, the larger crystals are called phenocryst. phenocryst जो बड़ा बड़ा होता है उसको बोलते हैं phenocryst, and जो छोटा छोटा होता है उसको बोलते हैं matrix और ground mass. Okay, and if the phenocryst are set in a glassy ground mass, then that will be called vitrophoric. ठीक है, vitrophoric. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विट्रोफिरिक. पोर्फिरिटिक हो गया, देन विट्रोफिरिक हो गया. देन इफ द फेनोक्रिस्ट कंटेन न्यूमरस इंक्लूजन्स ऑफ अनदर मिनरल्स दैट दे enveloped enveloped as they grow, it is called your poikilytic texture. Okay, and the host crystal poikilytic texture जो बताएंगे, ठीक है, पोइक्लिटिक टेक्सचर जो बताएंगे उसमें जो हमारा होस्ट क्रिस्टल होगा उसको बोलेंगे ओइकोक्रिस्ट.
ठीक है, तो पोइक्लिटिक टेक्सचर में क्या होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। दीज आर बेसिकली एंड फ्रॉम दिस टेक्सचर विल बी एबल, यहाँ पर जैसे कि बताया कि पोर्फिरिटिक टेक्सचर, ना ये पोर्फिरिटिक टेक्सचर जो हम बता दिए अभी, यहाँ पर देखो सब लोग थोड़ा ध्यान दो। इफ अभी हम बता रहे हैं कि पोर्फिरिटिक टेक्सचर, ठीक है। नाउ इफ वी आर कंसिडरिंग द पोर्फिरिटिक टेक्सचर, लिखते हैं पोर्फिरिटिक टेक्सचर। नाउ ये जो टेक्सचर अगर हमारे पास है, ये कैसा है, एक बड़ा ग्रेन है, छोटा 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 ग्रेन है, बड़ा ग्रेन, छोटा 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 ग्रेन है। नाउ दिस टेक्सचर इज कॉल्ड योर पोर्फिरिटिक टेक्सचर। एंड यू जस्ट इमेजिन, अभी हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा वाला ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको बोलेंगे हम बाईमोडल ग्रेन, बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दिस बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास अभी ये रॉक है, ये इस रॉक के अंदर ये वाला टेक्सचर है, एंड ये टेक्सचर को देख के हम वी आर कंक्लूडिंग, क्या कंक्लूड कर रहे हैं, दैट दिस क्रिस्टलाइजेशन is not a single cooling phase. It must have experienced two phases of cooling. ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि टेक्सचर को देख के हम बताएंगे कि इन व्हिच कंडीशन इट माइट हैव क्रिस्टलाइज्ड। ये हम देखो अभी टेक्सचर देख के हम बता पा रहे हैं कि सर सर अगर पोर्फिरिटिक टेक्सचर होगा तो सर तो टू स्टेजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना तो सर जरूरी है। एक स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जहां पर क्या होगा, बहुत ही धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, एंड बहुत ही धीरे धीरे जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय दिस बिगर वन। धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ये बिगर वन दे विल आइडेंटिफाई। और जो ये छोटे छोटे हैं, ये क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन है, द क्रिस्टलाइजेशन रेट वाज लिटिल बिट हाई, यहाँ पर हाई रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, और टेम्परेचर जो चेंज हो रहा था दैट वाज हाई, change in temperature was high for the formation of this red, and change of temperature was low for this formation of this bigger grain. okay, ठीक है। उसके बाद पोर्फिरिटिक हो गया, पोइक्लिटिक हो गया, विट्रोफिरिक हो गया, देन इतना ही है इसमें बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी देखो क्या होता है कि जो डिग्री ऑफ जो कूलिंग होता है, जो डिग्री ऑफ कूलिंग जो तुम्हारा होता है, नाउ दिस कूलिंग इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ योर फ्लूइड्स। अगर इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर है, तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, द सडन लॉस ऑफ वाटर रिच फ्लूइड फेज फ्रॉम ए मेल्ट will quickly raise the crystallization temperature and can also produce porphyritic texture in plutonic rock. So यहाँ पर जो presence of your fluid, in this case we are considering the water. Now this presence or absence of your water, it can also affect the rate or the type of crystallization. okay, or it can also increase or reduce the degree of crystallization or the rate of crystallization, ये कर सकता है। ठीक है, डीकम्प्रेशनल मेल्टिंग हम देखेंगे, ठीक है, कभी कभी देखेंगे, और जियोलॉजी कॉन्सेप्ट में डीकम्प्रेशनल मेल्टिंग होता है, इन सबडक्शन जोन में डीकम्प्रेशनल मेल्टिंग होता है। तो कैसे होता है, ठीक है, डीकम्प्रेशन हो, बहुत ही ज्यादा कंप्रेशन होता है या फिर बहुत ही ज्यादा डीकम्प्रेशन हो जाता है, तो फ्लूइड फेज बाहर आ जाते हैं, एंड दिस फ्लूइड फेज क्या करते हैं, जो तुम्हारा मेल्टिंग होता है उस मेल्टिंग को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन, कहां पर, मैग्मा चैम्बर। ठीक है, और देखो वन डिफ्यूजन रेट इज नॉट लिमिटिंग, then the crystal growing free and undercooling in the melt will tend to be euhedral। ठीक है, अभी धीरे होगा, यूहेड्रल, अनहेड्रल, हमेशा याद रखना ए टू ई होता है, अनहेड्रल टू यूहेड्रल होता है। जैसे ए बी सी डी ई होता है ना, पहले तुम ए सीखते हो तो ये पोरली डेवलप्ड है, यूहेड्रल मतलब अभी तुम मास्टर बन गए हो तो ये तुम्हारा वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, हमेशा ए टू ई जाता है, अनहेड्रल टू यूहेड्रल होता है। ठीक है, ये देखो द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड तुम्हारा ग्रोथ रेट जो है, ठीक है, व्हेन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्लोअर देन द रेट ऑफ ग्रोथ, ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लेस देन द रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इन दिस केस, ओके, इन दिस केस द क्रिस्टल टेक ऑन एन इंक्रीजिंगली रेडिएटिंग फॉर्म, दिस इज कॉल्ड योर डेंड्रिटिक टेक्सचर।
ओके, डेंड्रिटिक टेक्सचर। तो डेंड्रिटिक टेक्सचर के लिए कंडीशन क्या है? द रेट ऑफ योर डिफ्यूजन इज मोर एज कंपेयर टू योर ग्रोथ रेट, सॉरी, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लेस एज कंपेयर टू योर ग्रोथ रेट। ठीक है, अभी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी देखो यहां पर एक कंडीशन है, यहां पर ये वाला देखो, डेंड्रिटिक टेक्सचर यही है ना, ये देखो तुम्हारा डेंड्रिटिक टेक्सचर अभी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है लेकिन डिफ्यूजन नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है? ये ग्रो करना चाहता है, ये जो न्यूक्लियस है, इट इज वांटिंग और इट वांट्स टू ग्रो, बट इट इज नॉट गेटिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट इसको मिल नहीं रहा है। ठीक है, अभी इसको अपना कॉन्स्टिट्यूएंट मिल नहीं रहा है। इन द सेंस यहाँ पर डिफ्यूजन उतना एफिशिएंट डिफ्यूजन अभी तक है नहीं इस सिस्टम में। बट efficient diffusion is not present, still this nucleus it wants or it is trying to grow और grow कर रहा है। the rate of growth is exceeding the rate of diffusion। ठीक है, ग्रोथ ज्यादा है, डिफ्यूजन कम है, तो ये क्या करेगा? हर एक, ठीक है, इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में इक्वली ग्रो नहीं कर पाएगा, और मे भी किसी डायरेक्शन में भी इक्वली ग्रो नहीं कर पाएगा। एक थिन लाइन में भी ग्रो कर सकता है, ऐसे 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 ये ग्रो कर जाएगा। नाउ दिस टेक्सचर इज नथिंग बट योर डेंड्रिटिक टेक्सचर। ठीक है, ये तुम्हारा डेंड्रिटिक टेक्सचर बोलते हैं। ठीक है, डेंड्रिटिक टेक्सचर में ये डीजी इसको याद रखो। ठीक है, डी लेस देन जी, देन ये तुम्हारा डेंड्रिटिक टेक्सचर होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। एंड व्हेन द डिफ्यूजन इज स्लोअर देन द ग्रोथ, ए जोन ऑफ डिप्लीटेड लिक्विड बिल्ड अप एट द क्रिस्टल लिक्विड इंटरफेस as described above. Some propose that the crystal reach out in thin tendrils beyond the zone to tap a supply of appropriate। ये सब पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा डेंड्रिटिक टेक्सचर है, हम बता दिए, छोड़ गया। उसके बाद अल्ट्रामेफिक लावा में होता है, दीज आर रिलेटेड टू प्री कैम्ब्रियन कोमाटियाइट, उसमें जो टेक्सचर बनता है वो भी एक स्पिनिफेक्स टेक्सचर बनता है, जिसमें तुम्हारा ओलिविन ब्लेड्स होते हैं, ऐसे 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 ओलिविन ब्लेड्स होते हैं, ऐसे 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 पूरा दिखेगा जो तुम्हारा कोमाटियाइट में स्पिनिफेक्स टेक्सचर। ओके, व्हेन क्वेंच्ड, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं क्वेंचिंग। क्या बोलते हैं? क्वेंचिंग। ठीक है, and may develop a spectacular elongated olivine crystals, in some cases up to 1 meter long. These are called spinifex texture. Okay, and crystal corners and edges have a larger volume of nearby liquid to tap for components than do crystal face. In addition, corners and edges have high proportion of unsatisfied bonds. That's why okay, thus we might expect the corners and edges to grow more rapidly than the face in quench situation। अभी देखो यहाँ पे जो तुम्हारा ग्रोथ के लिए, फॉर द ग्रोथ, व्हाट डू यू नीड? फॉर ग्रोथ यू नीड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो तुम्हें चाहिए। नाउ देखो अभी कॉर्नर में, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर में देखो इसके पास, now to receive the constituent it has this much of surface, इतना जगह से ये रिसीव कर सकता है कि नहीं? लेकिन ये एज देखो, और एज ये फेस देखो, ये फेस कहां से? यहां से ही लेके आ पाएगा, इतना ही। लेकिन यहां से इसके लिए देखो, यहां से यहां तक, दैट मीन्स इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट लाने का जो जगह है दैट इज ब्रॉड, so it can get more constituents as compared to this face। ये जो फेस है, फेस में देखो इतने से ही आएगा, इतने से ही आ गया। ये वाला फेस में देखो इतने से भी आ रहा है, ये वाला फेस अगर कौन से, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो जूम करते हैं, देखो ये वाला एक फेस है, ये वाला फेस के लिए ये कितना लाना चाहिए? इतना ही उसके पास अवेलेबल होना चाहिए था। ये वाला फेस के लिए इतना अवेलेबल होना चाहिए था, but in this case this is an extra। now this extra, this face is not getting, क्योंकि ये फेस इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो लाने के लिए, और इट इज द कॉर्नर्स आर मोर
वॉल्यूमेट्रिकली और सरफेशियली। 3D में देखेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक ही देखेंगे। नाउ these corners are volumetrically more connected with the melt, है कि नहीं? मेल्ट के साथ ये बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है, मतलब दे आर जस्ट शेयरिंग मोर सरफेस एरिया, ठीक है? तो दे आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनके पास हुआ देन रेट ऑफ ग्रोथ इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू दिस, है कि नहीं? दिस ग्रोथ, ये जो तुम्हारा एरो का जो लेंथ है दैट इज जस्ट डिस्क्राइबिंग द मैग्नीट्यूड। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड इसमें बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, इसमें बहुत ही कम ग्रो करेगा, ठीक है? क्वेंचिंग होके सैलोटेल, जो प्लाजियोक्लेज में जो सैलोटेल बनता है, दिस इज एक्चुअली बेसिकली वन रीजन फॉर दिस। ओके, यही है तुम्हारा, और कुछ नहीं है। न्यूक्लिएशन एट प्रिफर्ड साइट ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप यू जस्ट लाइक दिस। अभी जो भी है, अभी लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, दैट इज थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे 1.2 से। न्यूक्लिएशन एट, कहाँ से मिलेंगे? न्यूक्लिएशन एट प्रेफर्ड साइट्स। यहाँ पे हम देखेंगे जो यूटैक्सिस, एपिटैक्सिस, डाइटैक्सिस, ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इसके साथ थोड़ा फैमिलियर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।